Good morning, myself Chirag Sukhani. I am going to teach you Advanced Financial Management subject in TY. Now today in this session we will continue our chapter that is cost of capital, and in this session we will continue the third source that is cost of equity. Now in earlier we will completed the cost of the preference shares. Now today in this session we will continue or we will start the cost of equity. Now first of all, the cost of equity can be denoted as what? KE. Okay, जैसे आपने cost of debt KD, preference shares KP, so equity is what? KE. Now for the calculation of cost of equity, different approaches are used. Okay, different approaches are used for the cost of equity share. Okay, now first approach, that is dividend price ratio approach. First approach is what? Dividend price ratio approach. Now under this approach, the cost of equity share is calculated on the basis of present value of expected future stream of the dividend. Okay, आपको क्या करना है? Expected, we have to calculate on the basis of, we have to calculate present value of the expected future stream of the dividend. Here the cost of equity capital will be the rate of expected dividend which will maintain market price of equity share. Okay, in short, in dividend price ratio approach we have to calculate the cost of equity share on the basis of present value of expected future stream of the dividend. Okay, and this expected future stream of the dividend which will maintain the market price of the equity share. Now the formula used for the calculation of the cost of equity, simple सा formula, KE is equal to what? D1 upon P0. D1 अपॉन P0, PO कुछ भी आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे क्या है? D1 अपॉन P0. नाउ ये जनरल टर्म है. D1 is what? D1 is expected dividend per share at the end of the year 1. Okay, expected dividend per share at the end of the year 1, and we as equity shareholders we expect that company will declare dividend at the year so and so amount. Okay, so D1 is what? Expected dividend per share at the end of the year 1. Now ये नोट याद रखना कि डिविडेंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग यानी अर्निंग, टोटल अर्निंग. ओके, से एग्जाम्पल फर्म टोटल अर्न करते, प्रॉफिट अर्न करते, एंड आउट ऑफ दिस टोटल प्रॉफिट और टोटल अर्निंग द फर्म पे डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ना. Okay, so dividend is always calculated on the earnings. Okay, so here D1 is what? Earning per share into bracket 1 minus B, ये सब फॉर्मूला है, एंड D1 is what? EPS into payout ratio. Okay, तो ये सब सेम ही है, ये सब सेम ही है. ओके, ना ये आप समझो कि डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द अर्निंग पर शेयर. से एग्जाम्पल कि कंपनी ने अर्निंग पर शेयर ईपीएस 10 रुपीज अर्न किया है, पर शेयर बेसिस पे 10 रुपीज अर्न किया है. नाउ इफ द कंपनी डिक्लेयर्ड 50% एज ए डिविडेंड, 50% एज अ डिविडेंड, यानी कंपनी ने पे आउट कितना डिक्लेयर किया? 50%. सो 10 इंटू 50% यानी कितना आ जाएगा? 10 इंटू 50% यानी 5 रुपीज आ जाएगा. सो D1 is what? ₹5. So remember one thing, dividend is calculated on earning. तो simple सा D1 is what? Earning per share into bracket payout ratio, और dividend is equal to earning per share into bracket 1 minus B. B is nothing but retention ratio. अभी आप समझो पे आउट एंड रिटेंशन का क्या रिलेशनशिप है. सपोज कंपनी ने 10 रुपीज अर्न किया, उसमें से कंपनी ने पे किया 5 रुपीज, 5 रुपीज पे किया यानी पे आउट हुआ. ओके, अभी बचा कितना? 5. तो 5 अपने पास रखा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटेंशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ मैंने रिलेशनशिप बोला कि पे आउट एंड रिटेंशन.
यानी कंपनी ने पे आउट 50% किया, होल ऑफ द प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया ऐसे डिविडेंड, पे आउट 50% किया, तो अपने पास रखा कितना 50%, सो 50% कैन बी कंसिडर एज व्हाट, रिटेंशन रेशियो। आया समझ में? ए पे आउट इज 30%, तो कंपनी ने रखा कितना 70%, तो 70% इज व्हाट, रिटेंशन रेशियो। आप कैसे भी आप कैलकुलेट करो ना, सब आंसर सेम ही आएगा। इधर आप रिटेंशन रेशियो लेके करो या इधर आप पे आउट रेशियो लेके करो, सो डिविडेंड का आंसर सेम ही आएगा। बट रिमेंबर, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग पर शेयर, दैट इज EPS। क्लियर? सो K इज व्हाट, D1 अपॉन PO। बाकी सब सेम ही है कि D1 इज व्हाट, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर 1। नाउ अनदर फॉर्मूला, D1 इज व्हाट, D0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस G, यानी व्हेन करंट डिविडेंड इज गिवन, D0 यानी करंट डिविडेंड, D0 यानी करंट डिविडेंड और लास्ट ईयर डिविडेंड। Now current dividend or last year dividend is given in sum, current dividend or last year dividend is given na, so we have to calculate the expected dividend is what, D0 into bracket 1 plus G. G is what, growth rate, G is what, growth rate, and growth rate का formula is what, BR. B is nothing, retention ratio, B is what, retention ratio। okay, so B क्या होता है, 1 minus dividend payout ratio, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, सो अल्टीमेटली वो आपका क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। आ रहा है समझ में? सो पे आउट एंड रिटेंशन में याद रखना कि 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से डिविडेंड पे आउट माइनस करेंगे तो रिटेंशन मिलेगा, ओके, और 1 में से रिटेंशन माइनस करेंगे तो पे आउट मिलेगा, तो सेम ही है सब। सो G is what, B into R, B is what, retention ratio, and R is what, rate of return on the retained earning, retained earning के ऊपर जो फॉर्म दे रहा है, that is what, R। सो जितना रिटेन किया into rate of retain earning will determine growth rate of the firm। okay, so ये फॉर्मूला K is what, D1 upon P0। okay, so जब जैसे हम लोग सम्स करते जाएंगे आपको आ जाएगा ना, ये मेन याद रखना था जो आपको होप्स की याद रह गया होगा। Now second is, and PO, price of the share, PO is what, P0 is equal to current market price per share in the beginning of the year 1। clear? Now second approach, dividend price plus growth approach, dividend price plus growth approach। Now under this approach, the cost of equity share is calculated on the basis of the present value of the expected future stream of dividend and the rate of growth in dividend, same ही है, that is present value of expected future stream of dividend plus आपको क्या ऐड करना है, growth rate in dividend। ओके, तो फॉर्मूला क्या था आगे, K is what, D1 अपन PO, बट यहाँ पे ग्रोथ ऐड करना है, सो प्लस क्या कर दोगे G। D1 कैसे फाइंड आउट करना, सब सेम, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर पाओगे। सो D1 कैसे मिलता है, अर्निंग पर शेयर इनटू पे आउट रेशियो, व्हेन द करंट डिविडेंड इज गिवन, सो D0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस G, तो आपको D1 मिलेगा। एंड PO तो दे ही देते हैं, दैट इज करंट मार्केट प्राइस, G यानी ग्रोथ रेट, सो G नहीं दिया होगा तो B इंटू R, दैट इज रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, सो D1 अपन PO प्लस G। नाउ रिमेंबर, ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, बिकॉज जो हम लोग आगे सम्स करने वाले हैं ना, उसमें सब में यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट करंट मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट, D1 अपॉन PO प्लस G। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ थर्ड अप्रोच, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, सब सेम ही है, खाली वर्ड यूज अलग किया है, डिविडेंड की जगह पे क्या आ गया, अर्निंग आ गया। Now under this approach, the cost of equity share is calculated on the basis of present value of the expected future stream of the earnings, and this earning whether it is distributed or not। okay, so here the cost of equity capital, it is based upon that rate of expected earnings which will maintain market price of equity share। okay, तो यहाँ पे आपको खाली क्या यूज करना है, that is present value of expected future stream of earnings
and this earnings it is whether distributed or not. Clear? So formula सब same ही, k is equal to what, E1 upon P0. आगे क्या था, k is equal to D1 upon P0, वो डिविडेंड वाला था, ये अर्निंग्स वाला है. सो अर्निंग में क्या आएगा, E1 upon P0, and E1 is nothing but expected earning per share at the end of the year 1. Clear? Now next is earning price plus growth approach. Earning price plus growth approach. Clear? Same ही है. So under this approach, the cost of equity share is calculated on the basis of present value of the expected future stream of earnings and the rate of growth in earnings. Okay, so k is what, E1 upon PO plus G. Okay, वहां पे क्या था, D1 upon PO plus G, यहाँ पे earnings वाला है तो E1 upon PO plus G. and E1 कैसे मिलता है, current earning into bracket 1 plus G. Clear? But again I am telling you, ये आपको अच्छे से याद रखना है, that is D1 upon PO plus G. Clear? Now next approach, fifth approach, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल. ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में भी आप पढ़ेंगे, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, दैट इज CAPM मॉडल. नाउ दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर शार्प, मोशिन एंड लिंटर इन ईयर 1960. नाउ द मेन थीम, मेन कंटेंशन ऑफ द CAPM मॉडल इज दैट require rate of return on security. Now require rate of return on security is nothing but cost of equity. Okay, so require rate of return on security is equal to risk free rate plus risk premium. कैसे मिलता है, K is what, risk free rate plus risk premium. Now what is risk free rate? Now risk free rate is what, risk free rate is a rate of return on the risk free security, is the security which has no risk of default. ओके, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी किसको बोला जाता है, जिनमें कोई रिस्क है ही नहीं, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्क फ्री सिक्योरिटी. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, गवर्नमेंट बॉन्ड कंसिडर एज व्हाट, रिस्क फ्री सिक्योरिटी. क्लियर? एंड व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? नाउ रिस्क प्रीमियम इज व्हाट, प्रीमियम फॉर द सिस्टमैटिक रिस्क. तो व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? Systematic risk, it is also called as what, market risk. It is also called as non-diversifiable risk. Is a risk which cannot be eliminated through investing in well diversified market portfolio. ओके, यानी आपका सिस्टमेटिक रिस्क क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक रिस्क इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट रिस्क. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क. और ये रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, चाहे आप वो अपने पोर्टफोलियो अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप ये रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. ओके, एंड दिस रिस्क it is measured by the beta, that is B, ये उसका शाइन है बीटा. ओके, एग्जाम्पल, चेंजेस टू लॉ, टैक्स रिफॉर्म, ओके, नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी चेंजेस, करेंसी वैल्यू चेंजेस, फेलियर ऑफ बैंक्स, इकोनॉमिक रिसेशन. तो ये जो सब है ना, आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क. ओके, नाउ इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो हर एक शेयर्स के ऊपर अफेक्ट तो होगा ही. ओके, सो ये रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे बाय इन्वेस्टिंग इन वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो. ओके, जैसे करेंसी वैल्यू में चेंज आएगा सो हर एक शेयर्स के प्राइस में अप्स एंड डाउन तो आने ही वाले हैं. ओके, जैसे फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी अगेन आपके मार्केट प्राइस बिजनेस को अफेक्ट होगा. सो ये क्या होता है, सच टाइप ऑफ रिस्क इट इज नॉट एलिमिनेटेड बाय इन्वेस्टिंग इन द वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो. ओके, एंड दिस बीटा indicates that how much individual securities return will change for a unit change in the market return. मतलब बीटा क्या मेजर करता है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न, यानी कंपनी के जो सिक्योरिटीज है वो रिटर्न में कैसे चेंज आएगा अगर कोई मार्केट रिटर्न में चेंज आएगा. ओके, जैसे मार्केट रिटर्न में चेंज आएगा तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न में
क्या चेंज आएगा, वो क्या मेजर करता है, बीटा. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ बीटा कैन बी 0 और 1 और मोर देन 1 और लेस देन 1. नाउ इफ बीटा इक्वल टू 1 यानी सिक्योरिटी रिटर्न फ्लक्चुएट इक्वल टू मार्केट रिटर्न. ओके, मार्केट में 10% रिटर्न आया. ओके, तो 10% मार्केट रिटर्न में फ्लक्चुएशन आया, तो आपका सिक्योरिटी रिटर्न भी 10% फ्लक्चुएशन आया. सो बीटा का आंसर क्या होगा, 1. ना बीटा इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, सिक्योरिटीज रिटर्न फ्लक्चुएट मोर देन द मार्केट रिटर्न, यानी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है एज कंपेयर टू द मार्केट रिटर्न. बीटा इज लेस देन 1 मतलब security return fluctuation is lesser than the market return, and beta is 0 यानी there is no fluctuation, there is no volatility. Okay, so based on the CAPM model, how the KE is calculated? So simple सा formula, KE is equal to RF plus beta into bracket RM minus RF. Okay, so here RF is what, risk free return. RM यानी this RM is what, expected rate of market return, expected rate of market return. Okay, so K is what, required rate of return is what, risk free rate plus risk premium. Okay, so required rate of return on security K is what, risk free rate plus risk premium. So risk free rate को हम लोग ने क्या डिनोट किया, RF. ओके, एंड द रिस्क प्रीमियम यानी बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF. आ रहा है समझ में? सो ये मेथड भी आपको याद रखनी है. सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए 2 मेथड्स मेन यूज होगी. कौन सी? दिस K इज व्हाट, D1 अपॉन PO प्लस G, बिकॉज हम लोग आगे सम्स करने वाले हैं ना, उसमें हर एक में यही आएगा, D1 अपॉन PO प्लस G. एंड जो सम्स में RF दिया होगा, रिस्क फ्री रिटर्न दिया होगा, ओके, मार्केट रिटर्न दिया होगा, तो वो केसेस में आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट RM माइनस RF. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये हम लोग थियोरी पढ़े और फॉर्मूला देखें कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट कैलकुलेशन पार्ट. क्लियर? नाउ बाय, टेक